ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا سوچنا قبل از وقت اور امن معاہدے پر دستخط کی تیاریاں ابھی دور ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ انٹرویو، ایران نے تجاویز مان لی تو آبِ ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی، بحری ناکہ بندی اور آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا، تجاویز تسلیم نہ کرنے پر پہلے سے زیادہ بمباری ہوگی، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام میں انتباہ۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ایران تجاویز پر غور کے بعد ثالث پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران حتمی معاہدے کے قریب پہنچ گئے، دونوں فریقین ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی یادداشت پر متفق ہو چکے، MOU پر دستخط ہوتے ہی خطے میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 30 دن کے اندر اسلام آباد یا جنیوا میں تفصیلی مذاکرات ہوں گے، جن میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی پروگرام پر حتمی بات چیت ہوگی۔ ایران کی جانب سے جہاز رانی پر پابندیاں اور امریکہ کا بحری محاصرہ بتدریج ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا ایگزورس نے معاہدے کے لیے آئندہ آنے والی 48 گھنٹے کو اہم قرار دے دیا۔ ایران کو دباؤ کے تحت مذاکرات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، سرنڈر کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، ایرانی صدر کا دو ٹوک پیغام۔ ایران عالمی قوانین کے مطابق مذاکرات کے لیے تیار ہے، مسعود پزشکیان کی عراقی وزیر اعظم علی الزیدی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران کو جوہری ٹیکنالوجی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، امریکہ اس قسم کا ماحول پیدا کر رہا ہے جیسے ایران کے پاس جوہری صلاحیت نہیں ہونی چاہیے اور حد سے متجاوز مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی مذاکرات کے دوران جوہری پروگرام کی ضروری عالمی مانیٹرنگ پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ مسعود پزشکیان کی گفتگو، عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں صرف منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کیا جائے گا، ایرانی وزیر خارجہ نے صاف صاف بتا دیا۔ عباس عراقچی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات، ایران کی جانب سے جائز حقوق اور قومی مفادات سے دستبردار نہ ہونے کا پیغام، چینی وزیر خارجہ کا 2 ماہ سے جاری جنگ پر تشویش کا اظہار، موجودہ صورتحال میں جامع جنگ بندی ناگزیر قرار، جنگ کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول، مکالمے اور مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے، چینی وزیر خارجہ کا موقف۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا، جیرڈ کشنر اور وٹکاف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ کا ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنے کا مشورہ، کہا کہ آبِ ہرمز میں تصادم کے دوران 10 عام شہری ہلاک ہوئے، امریکی فوج کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا، آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول ناقابل قبول قرار۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بنائے ہرمز میں فوجی آپریشن عارضی طور پر روکنے کا اعلان، پروجیکٹ فریڈم معطل، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کا دعویٰ، کہا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر کی جانب سے آبِ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کا خیر مقدم، تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مکمل حمایت کرتے ہیں، امید ہے تازہ ترین پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے معاہدے پر مستج ہوگی، شہباز شریف نے ٹرمپ کا اقدام جرأتمندانہ قرار دے دیا۔ تو پاکستان نے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے یہ خدمت انجام دی، پختہ عزم کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے کھولے، یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت جلد دیرپا امن بدلنے کے لیے پر امید، مذاکرات میں پیش رفت سے خطے میں مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے گا۔ پاکستان عالمی سطح پر امن، مکالمے اور اعتماد کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 47 سال کے بعد ایران اور امریکہ میں براہ راست بات چیت کے لیے اسلام آباد آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی دعوت پر دونوں ممالک کی قیادت کا ایک پلیٹ فارم پر آنا عالمی سطح پر پاکستان پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ فیلڈ مارشل کی
काविशों से फरीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं। शहबाज शरीफ की अमन के लिए सऊदी अरब और चीन के किरदार की तारीफ। मुज़ाकरात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की काविशों को सराहा। मुज़ाकरात में कामयाबी खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकती है। ये पाकिस्तान की एक अहम खिदमत है जो उसने इस्लाम और आलमी अमन के लिए अंजाम दी। सिफारती काविशों में तुर्की समेत दीगर बरादर ममालिक ने साथ दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में 6ठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। अर्ज़ मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ पाक सऊदी अरब दिफ़ाई मुआहिदे की बुनियाद करार। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में इंसानी जानें बचाने में कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर असूली मौक़िफ़ दो टोक है। सागदार का इस्लामाबाद में उलमा काउंसिल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का बनाए होर्मस में एक और बहरी जहाज पर हमले का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से टारगेट किया गया। फौरी तौर पर नुकसान की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। फ्रांस का तैयारा बरदार बहरी जहाज को बहर अहमर में तैनात करने का ऐलान। मकसद आबनाए होर्मस में मुफ्त नेविगेशन बहाल करने के मिशन की तैयारी है। तैयारा बरदार बहरी जहाज आज नहर स्विस से जनूबी बहर अहमर की जानिब रुख करेगा। जहाज की तैनाती बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में कसीरुल कौमी इक़दाम का हिस्सा है। फ्रांसीसी वज़ारत दिफ़ा का बयान। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरे रोज मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों का दावा। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम में ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोका। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का एक्स पर पैगाम। UAE ने ईरान को जारे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर क़ुरकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरान ने हमले की मज़म्मत UAE के मौक़िफ़ की तौसीक़ करती है। तर्जुमान खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक UAE को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुताबिक होगा। पॉप लियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन की तबलीग चर्च का मिशन करार। वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं, चर्च ने हमेशा एटमी हथियारों के खिलाफ बात की है। हथियार उठाने के बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रीज अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने की बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोप लियो से मुतालिक बयान पर ट्रंप के दिफा में सामने आ गए। सदर ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। सदर का असल मौक़िफ़ ईरान के मुमकिना खतरे से मुतालिक था, खास तौर पर उन इलाकों के लिए जहां बड़ी तादाद में ईसाई और कैथोलिक आबाद हैं। मार्को रूबियो की वजाहत। We deeply appreciate your flexibility and support at this critical juncture as Pakistan continues to engage in important efforts towards regional peace and stability. Pakistan is among the most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress, and dangerously poor air quality. मौसमियाती तब्दीली महज एक माहौलियाती बहरान नहीं, ये पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, अवामी सेहत और मुल्क की तरक्की के सफर के लिए एक बड़ा खतरा है। डॉन मीडिया ग्रुप की CEO नाज आफरीन सहगल का ब्रीथ पाकिस्तान के उन्वान से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के पहले रोज इफ्तिताही खिताब। कॉन्फ्रेंस कल भी जारी रहेगी। आग तो है मगर हमने तो नहीं लगाई। हम तो 1% से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर। इसे आलमी नाइंसाफी कहें या मुनाफिकत, लेकिन सच यही है कि जो मौसमियाती तब्दीली का सबब है वो कीमत अदा नहीं कर रहे। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का डॉन मीडिया के तहत माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब में शिकवा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती और माहौल दोस्त मालियात के हुसूल के लिए दस्तियाब फंड्स का शफाफ, फाल और मौसर इस्तेमाल ज़रूरी करार दे दिया।
पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है, सेनेटर शहरी रहमान का इजहार ख्याल। पाकिस्तान सबसे ज्यादा माहौलियाती आलूदगी से मुतासर होने वाला मुल्क है। ऐसे में ब्रीथ पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म निहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का ब्रीथ पाकिस्तान पर डॉन ग्रुप को मुबारकबाद, हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी करवाती। मौक़ा हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाकर वतन अजीज पर हमले की नापाक मंसूबाबंदी की। इस मकसद के लिए मीडिया पर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। भारत को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ी। भारत के खिलाफ जंगी कामयाबी पर ISPR ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौक़ा हक पाकिस्तान का फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दे दिया और वाज़ेह किया कि मौक़ा हक अजीम फतह ने पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। मौक़ा हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मौक़ा हक से वाज़ेह हुआ है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया है कि मौक़ा हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम के वाक़े को बैनुल अक़वामी अदालत क्यों नहीं ले गया। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। शोबिस शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। शोबिस शख्सियात ने मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों को सराहा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती की जामिन करार। मौक़ा हक का 1 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरवकार सकाफती तकरीब। फनकारों ने खूब रंग जमाया, शुरका कौमी परचम लहराते रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। दुश्मन की कोई भी चाल, कोई फरेब या धोखाधही पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर मुश्किल हर तूफान में मुल्क के साथ खड़े हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैगाम। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मौक़ा हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को तकरीब में मरियम नवाज शरीक होंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का ऐलान। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की चकलाला रावलपिंडी में नमाज जनाजा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल शरीक हुए। शहीद अफसर को खिराज अकीदत पेश। सदर ममलिकत ने सेनेट इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वफाकी मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एक दिन की कलम छोड़ हड़ताल। बेशतर महकमों में सरकारी उमूर ठप। वफाक के साथ आईनी और मुआशी मामलात पर स्पीकर की जेर सरबराही कमेटी कायम कर दी गई। वजीर तालीम, वजीर कानून, मुशीर खजाना और अपोजिशन लीडर कमेटी का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का मानसहरा में जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हज़ारा डिवीजन के लिए 200 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब की तरक्की का सुनहरी दौर शुरू हो गया। 3000 से जायद मराकज़े सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील हो गया। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट खरीदने का फैसला। आलमी कंपनियों से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब कर ली। इसी दिन बोलियां खोली जाएंगी। पहले कार्गो की सप्लाई 12 से 14 मई तक रखी गई है। दूसरे LNG कार्गो की सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी।
बरसों से बंद डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट बहाल हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और वजारत दिफा को खराज तहसीन पेश। कराची में शीमा किरमानी और इंसानी हुकूक की खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी पर एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का नोटिस। DSP सदर SHO विमेन और SHO आर्टलरी मैदान थाना मुअत्तल। कराची पुलिस चीफ ने पुलिस को शहरियों के आईनी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखने की हिदायत कर दी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नापरा में दरख्वास्त दायर। नापरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाप्त होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म। पंजाब में गर्म मौसम के साथ गर्द आलूद हवाएं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। भारतीय पंजाब में यके बाद दीगरे 2 धमाके। जालंधर BSF हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद डिलीवरी स्कूटर धमाके से तबाह। BSF एहलकार शदीद जख्मी। खालिस्तान ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। UAE की रियासत रासल खैमा के बुलंदोबाला पहाड़ों पर पाकिस्तानी नौजवान ने जान पर खेलकर फिलिपाइनी खातून की जान बचा ली। पाकिस्तानी गाइड फैजी शर्मानी गर्मी की शिद्दत से बेहोश होने वाले फिलिपाइनी खातून को 3 घंटे तक कंधे पर उठाए चलकर पहाड़ से नीचे उतार लाया। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह का मिशन। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का मुसलसल तीसरे रोज शेर बांग्ला क्रिकेट सीरीज में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सीरीज का पहला मैच 8 मई से शुरू होगा। चीन के शहर शानिंग में रंगारंग नाइट शो। ड्रोन से आसमान जगमगा उठा। रिवायती फूलों से सजे अफराद और लालटेन उठाए गार्ड्स ने झील के किनारे परेड की। फनकारों ने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया।